Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vinakshi. In my channel you will find videos for class 12th covering the entire lessons of Vistas and Flamingo, describing the crux, important questions and summaries. Without any further ado, let's start the first lesson of Flamingo by Alphonse Daudet by the title The Last Lesson. We can make a mind map after reading the title at the first go. Certain questions arise such as why is the title so? What is the reason behind this title? And prominently, why this lesson has been included in the syllabus. Before starting the lesson, let me give you the glimpse of the theme as well as the plot behind this summary. So, take out page number 2, starting from the first line. It's first paragraph on the scroll. The last lesson. Now let's discuss about the theme. Let me tell you, the main theme behind this lesson is language imposition and loyalty towards the language, patriotism and a sense of togetherness and belongingness. Further, freedom of language and the love for one's mother tongue are predominant in this lesson. Now I want to tell you, this lesson has been plotted at the time of Franco-Prussian War during 1870 to 1871. So now let's start the lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hemmel has said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So I would like to tell you that there are two main characters in this lesson by the name of Franz, who is a student, and M. Hemmel, who is a French teacher. So now Franz has been ready to go to his school, but he is a little late. अब स्कूल जाने को तैयार है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए उसको डर भी है अंदर से. सिर्फ लेट होने की वजह से डर नहीं है, उसको डर है बिकॉज ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. ड्रेड मीन्स फियर. उसको डांट खाने का, डांट पड़ने का डर है. एस्पेशली बिकॉज, क्यों? क्योंकि एम हेमल ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ऑन पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स बेसिकली जैसे हम लोग ग्रामर करते हैं इंग्लिश में, सेम वे फ्रेंच में दे यूज द पार्टिसिपल्स. अब उसका यू कैन से दैट उसका टेस्ट भी होना है पार्टिसिपल्स पे. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉर्मली वी हैव सीन इट कि क्या होता है क्लास में जब मैम आपको टेस्ट के लिए बोलती हैं. अब एक दिन पहले आपको टेस्ट के लिए बोला जाता है, तो वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन टेस्ट होना है, बहुत बच्चे या तो स्कूल से बंक कर जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं. सो सेम वे फ्रेंड्स भी यहाँ पे स्कूल नहीं जाना चाहता. क्यों? क्योंकि उसको डर है, उसने कुछ भी लर्न नहीं किया है. सो नाउ I did not know the first word. He himself says that I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. एक बार तो उसके मन में ख्याल आता है कि वो स्कूल से बाहर जाए और बाहर जाके घूमे. Because it was so warm and bright. अब warm and bright यहाँ पे स्पेशली क्यों बताया गया है? Because ये लेसन जो जहाँ पे लिखा गया है या जहाँ वो फ्रांस कंट्री है और फ्रांस के अंदर ठंड बहुत ज्यादा होती है. अब जहाँ विंटर्स ज्यादा होती हैं और समर्स कम होती हैं, वहाँ नॉर्मली लोग वेट करते हैं कि कब सनलाइट आए और सनलाइट को वो एंजॉय करें. तो सेम वे अब वार्म और ब्राइट वेदर है और वो बाहर जाके उस वेदर को एंजॉय करना चाहता है. अब फर्दर द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. He wanted to enjoy the chirping of the birds outside and in the open field back of the sawmill. Sawmill, we can say the factory or place where huge logs of woods are cut. बड़े बड़े लॉग्स वुड्स के आते हैं जो कट होते हैं, वो सॉमिल. उसके बैक साइड में प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. उनकी ड्रिलिंग मार्च पास्ट चल रही है, वो उसको देखकर वहां पे एंजॉय करना चाहता है. It was all much more tempting than the rule for participles. Tempting
अट्रैक्टिव। तो ये सब चीजें उसको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं अपने रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स लर्न करने की बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ द स्कूल। बट स्टिल वो कहीं से अपने अंदर एक स्ट्रेंथ कलेक्ट करता है और फिर वापस अपने स्कूल के लिए भाग जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping. अब वो जब जा रहा है अपने स्कूल तो रास्ते में टाउन हॉल पड़ता है। टाउन हॉल आप ये कह सकते हैं जैसे कोई एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ एक बुलेटिन बोर्ड लगा है जिसके थ्रू लोगों को करंट अफेयर्स, करंट न्यूज के बारे में अपनी कंट्री की पता चलता है। बिकॉज उस टाइम पे रेडियो टेलीविजन तो होते नहीं थे, तो उनको कैसे अपनी कंट्री में क्या वेयर अबाउट्स एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री, क्या चल रहा है, वो कैसे पता चलता था वहां पे बुलेटिन बोर्ड के थ्रू। क्योंकि उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लॉस्ट बैटल, जो लड़ाइयां वो हार चुके हैं। बिकॉज इस लेसन में जो फ्रांस है, फ्रांस हैज बीन डिफीटेड बाय रसिया। तो वो जो लड़ाइयां हार चुके हैं, जो फर्दर ऑर्डर्स और ड्राफ्ट कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू आते हैं, वो सब बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखे जाते हैं, सो दैट द एंटायर पब्लिक शुड बी अवेयर ऑफ ऑल सच ऑर्डर्स एंड कमांड्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ। अब फ्रेंड्स कहता है जब वो टाउन हॉल पहुंचता है और वहां देखता है कि लोगों का क्राउड वहां पे खड़ा है बुलेटिन बोर्ड के सामने, विदाउट स्टॉपिंग देयर, वो वहां रुके बिना, बिकॉज उसको अपने स्कूल जाना है। वो सोचता है अपने मन में कि इस बार अब क्या नया मैटर हो सकता है जो लोग यहाँ पर उसको देखने के लिए खड़े हैं। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith washer who was there with his apprentice you can say जो लो पे काम करते हैं, जो अपने वर्कर्स उन्होंने हायर किए होते हैं, जो लर्न करने के लिए आते हैं बेसिकली, जिसको आजकल हम ये कह सकते हैं जैसे आजकल कंपनीज में जो लोग स्टूडेंट्स आजकल जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, उनको किसी को कम सैलरी मिलती है या पेमेंट नहीं भी मिलती, बट दे आर गोइंग देयर टू लर्न समथिंग, so you can say apprentice. Reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bab. You will get to your school in plenty of time." अब वो क्या कहता है कि ब्लैकस्मिथ उसको रास्ते में मिलता है, जो उसको रोकता है पीछे से और कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी ही अपने स्कूल पहुंच जाओगे. You need not to worry about that. I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. अब वो पहले तो फ्रेंड्स को ये लगता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा है, मेकिंग फन ऑफ मी. बट धीरे धीरे वो जब वो भाग रहा है तो जाते जाते वो एम हेमल के गार्डन तक पहुंच जाता है. और एम हेमल का गार्डन कहाँ पर है? इट्स सिचुएटेड जस्ट बिसाइड द स्कूल. स्कूल के साथ में ही एम हेमल रहता है और वहीं उसका गार्डन है. तो इसका मतलब वो ऑलमोस्ट स्कूल पहुंच चुका है. यूजुअली when school began, there was a great bustle moving in noisy, busy way. जब बच्चे भाग रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उसको हम कहते हैं bustle. So वहां पे यूजुअली आपने देखा होगा जब कोई भी स्कूल स्टार्ट होता है, उसके आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि स्कूल स्टार्ट हो चुका है. कैसे पता चलता है? क्योंकि वहां बच्चों का शोर आना शुरू हो जाता है, क्लासेस चलने लग जाती है, डेस्क्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है. तो वो सब चीजें यहाँ बताता है कि यूजुअली स्कूल में ऐसा होता है नॉर्मली जब स्कूल स्टार्ट होता है. विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन स्पीकिंग कलेक्टिवली. सब लोग इकट्ठे जो लेसन्स को बोलते हैं. अब वो कहते हैं ये सब चीजें, इन सब का शोर होता है और क्लियरली स्ट्रीट पे भी लोगों को सुन सकता है ये सब शोर. वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. और टेबल पे जो टीचर अपना रैप कर रहा है रूलर को, मीन्स अपना उसको टैप कर रहा है, हिटिंग हार्ड, उससे उसका शोर भी सुनता है. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. अब क्या कहता है वो? लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वॉज ऑल सो स्टिल, क्वाइट, सब शांत था. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब वो ये चाहता था कि उस शोर के बीच में, उस नॉइज के बीच में चुपचाप वो अपनी क्लास में अपने डेस्क तक पहुंच जाए. बट उस दिन इतनी शांति थी जैसे संडे मॉर्निंग को होती है. संडे मॉर्निंग स्पेशली क्यों बोला है उसने?
क्योंकि संडे मॉर्निंग को संडेज को स्कूल्स ऑफ होते हैं। अब स्कूल्स ऑफ होते हैं तो वहां कोई शोर नहीं होता, स्कूल के आसपास स्कूल के अंदर कहीं भी किसी तरह का कोई नॉइज नहीं होता। Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hemal walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब वो क्लास में जब एंटर करता है, he is looking through the window, क्या देखता है कि उसके क्लासमेट्स जो हैं वो सब अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं एंड एम हेमल वॉज ऑलरेडी देयर, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है स्कूल के लिए, लेट पहुंचा है क्लास में। और एम हेमल क्लास में अप एंड डाउन वॉक कर रहे हैं। अप एंड डाउन मतलब आगे पीछे मूव कर रहे हैं क्लास में। जैसे नॉर्मली हमारे क्लासरूम्स में जब आपके एग्जामिनेशन डेज होते हैं तो आपके इन्विजिलेटर्स आते हैं, वो आपके क्लासरूम में मूवमेंट करते रहते हैं। सेम वे ही इज मूविंग इन द क्लास एंड हैविंग हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म के नीचे आयरन रूलर लिया है और अपनी क्लास में मूव कर रहा है एम हेमल। I had to open the door and go in before everybody. Ab entire class is sitting there. All of the students are sitting in the classroom and now friends is entering. तो उसने दरवाजा खोला, वो अंदर एंटर करता है और सब लोग उसके सामने बैठे हुए हैं। अब नेचुरली जब क्लास में कोई बच्चा लेट आता है और पूरी क्लास वहां पे है तो एवरीबडी लुक्स एट हिम, सब कोई उसको नोटिस करता है। तो सेम वे सब उसको देख रहे हैं। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब वो कहते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आप भी कभी अपने स्कूल में लेट पहुंचे हो, अपनी क्लास के अंदर लेट गए हो, तो किस तरह से आप ब्लश फील करते हैं, शर्म आती है आपको बिकॉज आप लेट हैं, यू फील एम्बैरेस्ड एंड फ्राइटेंड ऑल्सो। फ्राइटेंड बाय यू आर फियर ऑफ, यू फील योरसेल्फ गिल्टी, fear of or afraid of your teacher. But nothing happened. M. Hemel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." But वो क्या कहता है, पहले जब स्कूल में एंटर किया तो उसे लगा जैसे संडे मॉर्निंग जैसा स्कूल है, कोई शोर नहीं है, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। अब क्लास में एंटर करने के बाद उसको और हैरानी होती है, वो और सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके टीचर एम हेमल उसको देखते हैं और उसको कुछ नहीं कहते हैं और बहुत काइंडली उसको कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे और अच्छा हुआ तुम आ गए। I jumped over the bench and sat down at my desk. Here, jumped over is an idiom which is used in this sentence. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. अब वो क्या बताता है फ्रेंड्स कि अब वो क्लास में आके कंफर्टेबली अपनी सीट पे बैठा है, ऑलमोस्ट काफी हद तक उसका डर, उसका फ्राइट मीन्स उसका फियर उसके अंदर से निकल चुका है और तब वो अपने टीचर को नोटिस करता है और क्या देखता है कि उसके टीचर ही इज वेयरिंग ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, जो उसके यूजुअल ड्रेसेस में नहीं काउंट होता है। एक स्पेशल ड्रेस जिसको आप कह सकते हैं, जिनको वो नॉर्मली इंस्पेक्शन और फ्राइज डेज में ही पहनते थे, बाकी दिनों में नहीं पहनते थे, वो उस ड्रेस के अंदर उस दिन स्कूल में आए हुए हैं। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn means very serious. अब सीरियसनेस इतनी ज्यादा है, पूरा स्कूल क्वाइट है, शांत है। अब पूरे स्कूल में इतना बिल्कुल एक अजीब सा स्ट्रेंज माहौल है। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. अब सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग उसको क्या लगता है, अब जब स्कूल गया है फ्रेंड्स, एक तो लेट हो गया है और उसके बाद उसके सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस उसको मिले जा रहे हैं। अब वो कहता है सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग उसको क्या लगता है कि जो उसके क्लासरूम के बैक बेंचेस हैं जो हमेशा एम्प्टी रहते हैं, जहां पर कोई भी नहीं बैठता, those all benches, all desks were full of villagers. वहां पर सारे विलेजर्स बैठे हुए हैं, जिनमें ओल्ड हॉजर भी है, उसमें फॉर्मर मेयर भी है, फॉर्मर पोस्टमास्टर भी है और भी दूसरे विलेजर्स जो है वो साथ में बैठे हुए हैं। अब उसको ये बात समझ नहीं आती कि आज एक्चुअली है क्या ऐसा कि क्लास के अंदर एक तो स्कूल में इतना डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, उसके बाद क्लास में सब कुछ अलग लग रहा है, टीचर ने भी कुछ डांटा नहीं, कुछ बोला नहीं, और क्लास के अंदर विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। Everybody looked sad and Hauser had brought
An old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. वो अपने प्राइमर को अपने नीज पर रखता है, अपने स्पेक्स लगाकर उसको पढ़ना शुरू करता है. While I was wondering about it all, M. Hemmel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." अब वो कहता है कि उसके भी सरप्राइजेस खत्म हुए ही नहीं थे, अभी तो वंडरिंग पे वंडरिंग उसकी चल रही थी. और तभी क्या उसको एक और नया सरप्राइज क्या मिलता है. वो क्या देखता है कि एम हेमल ही माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर को एक जैसे आपके क्लासरूम्स में ब्लैक बोर्ड्स के आगे थोड़ा सा ऊंचा एक पेडेस्ट्रियन टाइप होता है, उसके ऊपर वो अपनी चेयर को थोड़ा सा ऊंचा रख के उस पर बैठता है. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, सेम सीरियस सैड और काइंड टोन में वो दोबारा से बोलता है जैसे उन्होंने बच्चों को पहले बोला था, दैट माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं. और ऐसा क्यों, जैसा हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टाइटल एंड व्हाई दिस लेसन हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिलेबस, एज आई टोल्ड यू बिफोर ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो. दैट अब इसका आंसर हमें यहाँ से ये रीजन पता चला है कि इसका टाइटल द लास्ट लेसन क्यों है, क्योंकि ये एम हेमल का लास्ट लेसन है. ही इज गोइंग टू डिलीवर हिज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. अब फर्दर आगे क्या होगा ऐसा और क्यों ऐसा है, बिकॉज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन यानी जर्मनी से ऑर्डर आया है कि वहां पे सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में. जैसा कि आप नेक्स्ट पेज नंबर 6 में देख सकते हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि जर्मनी के साथ में बॉर्डर पे लॉरेन और अल्सेस 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं. और बॉर्डर पे होने की वजह से फ्रांस के ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स, उस वजह से वहां के स्कूल्स में बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रसिया एट दैट टाइम इट वाज नोन एज प्रसिया, नाउ इट्स जर्मनी. और वहां उस वजह से अभी इनके ये ऑर्डर आ गया है बर्लिन से कि इनके स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी अपनी जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए वहां पे जर्मन पढ़ाना चाहते हैं, फ्रेंच नहीं, क्योंकि फ्रांस को वो डिफीट कर चुके हैं. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और उनका नया मास्टर जो है जर्मन टीचर वो अगले दिन आने वाले हैं. सो दिस इज योर लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. अब वो क्या कहते हैं उनके सर एम हेमल कि लास्ट लेसन है तुम्हारा और मैं चाहता हूँ कि सबके सब स्टूडेंट्स आज पूरे अटेंटिव होके क्लास में बैठे, पूरी अटेंशन के साथ, क्योंकि आज के बाद वो कभी दोबारा से फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे. What a thunderclap these words were to me. Here he used thunderclap. Thunderclap is the thundering sound. अब यहाँ पे उसने ये राइटर ने ये यूज किए हैं वर्ड्स thunderclap, which is such as metaphor. We can say metaphor here. Why? Because he wants to show the similarity between these words and the thunderclap, means thundering voice. अब वो words कौन से हैं? That this is their last lesson. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. अब उसको सारा मैटर समझ आ जाता है फ्रांस को कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के आगे इतना रश क्यों था, इतना क्राउड क्यों खड़ा था और एक्चुअली मैटर क्या था. My last French lesson? Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. अब उसको ये रियलाइज होता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मुझे तो अभी तक लिखना भी नहीं आता, मैंने कुछ सीखा ही नहीं. अब उसको ये चीज फील होती है कि उसने अपना टाइम जो है वो लर्निंग करने में नहीं लगाया, बल्कि अपना टाइम वेस्ट किया पूरा. उसने अपने लेसन्स तो कभी लर्न किए ही नहीं. और कहाँ टाइम वेस्ट किया, कभी वो बर्ड्स के एग्स देखता रहता था, कभी वो सार पे जाके एंजॉय करता रहता था. सार हियर इज इट्स अ रिवर in northeastern France and western Germany. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now, and I could not give up. And M. Hemmel too, the idea that he was going away
that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब उसको क्या क्या साथ में रियलाइज हो रहा है कि पहले उसको बुक्स अपनी फ्रेंच की बुक्स जो उसको न्यूसेंस लगती थी, न्यूसेंस मीन्स हिज बुक्स यूज्ड टू अनॉय हिम, उसको गुस्सा आता था अपनी बुक्स के ऊपर, उसको लगता था कि ये मेरी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रही हैं। लेकिन अब उसके कुछ टाइम बाद जिनको वो लगता था पहले कि बहुत हैवी है उसको लाने के लिए, वो अपनी स्कूल्स में बुक्स लेकर भी नहीं आता था, उसकी ग्रामर बुक, उसकी हिस्ट्री बुक्स, वो सब अब उसकी ओल्ड फ्रेंड्स बन जाएंगी। और ऐसी फ्रेंड्स बन जाएंगे जिनको वो दोबारा से पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसको पढ़ना तो आता ही नहीं है, ना उसको लिखना आता है। और दूसरा आइडिया उसको क्या कि मिस्टर एम हेमल जो उसके फ्रेंच टीचर हैं, जिनको अब तक वो क्रैंकी मान के चलता था, एक स्ट्रिक्ट टीचर मान के चलता था। क्रैंकी मीन्स असेंट्रिक सॉर्ट ऑफ पर्सन, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि सनकी है, बड़ा स्ट्रेंज है, तो वो ऐसा उनको मानता था। लेकिन अब उसको ये फील हो रहा है कि उसके टीचर इतने अच्छे हैं और वो दोबारा से उनको मिल भी नहीं पाएगा, उनको देख भी नहीं पाएगा। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. और अपने सर के बारे में कहते हैं कि बेचारे, poor man means बेचारे हमारे सर, इसीलिए इन्होंने आज अपने फाइन ड्रेसेस यहाँ पहने हैं, अपनी जो नॉर्मली ये इंस्पेक्शन डेज या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज के टाइम पहनते हैं, वो ड्रेस आज पहन के आए हैं। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब उसको ये भी समझ आ जाता है, जो पहले सब सरप्राइजेस थे वो धीरे धीरे सरप्राइजेस सारे उसके सामने अब खुलते जा रहे हैं। तो उसको ये भी क्लियर हो जाता है कि विलेजर्स वहां क्यों बैठे हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब उसको ये क्लियर हो जाता है कि वो विलेजर्स वहां आके वो सॉरी फील कर रहे हैं पहले कि वो अपने टाइमर पर स्कूल नहीं आ पाए पढ़ने के लिए, और वो थैंक्स करना चाहते हैं एक ऐसे टीचर को जिसने 40 इयर्स अपने स्पेंड किया उनके विलेज में अपनी फेथफुल सर्विस में, और उनका शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द थीम that it shows the patriotism. यहाँ पर ये patriotism fit होता है and the togetherness, कि वो सब मिलकर वहां पर आए हैं इकट्ठे, तो ये दिखाना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए एक togetherness, belongingness and the patriotism. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have been given to able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without a one mistake. अब वो जो बोलना चाहता था और जो नहीं, he was not able to say, क्या कि ड्रेडफुल रूल, अब वो कहता है रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स को वो ड्रेडफुल काउंट कर रहा है। ड्रेडफुल मीन्स अनप्लीजेंट, भयानक, डर रहा है वो उनसे, और वो क्या नहीं कर सकता था, वो उनको लाउड क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसने कुछ लर्न तो किया नहीं था। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। अब वो जैसे ही अपना बोलना स्टार्ट करता है, ही मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, अभी शुरू में ही वो सब कुछ मिक्सअप कर देता है और वो खड़ा रहता है वहां, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब उसको पता है कि उसने मिस्टेक करी है, उसने नहीं आंसर दिया है, और वो डेस्क को पकड़ के खड़ा हुआ है डर की वजह से, और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऊपर अपने सर को फेस टू फेस, आई टू आई कॉन्टेक्ट करके देख सके। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. अब उसके सर उसको क्या बोलते हैं, वो उसको ये फील करवाते हैं कि देखो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम खुद कितना बैड फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम डेली हमेशा यही कहते रहते थे कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। I have plenty of time. So it's you can say it's a sort of procrastination कि बहुत टाइम है अभी तो हम कर लेंगे। I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. और अब देखो हम कहाँ आ गए। हमेशा ये सोचते थे कि कल कर लेंगे, लेकिन अब कैसी सिचुएशन आ गई है कि अब तुम आगे कर ही नहीं पाओगे। That's a great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen
and yet you can neither speak nor write your own language. अब कहता है कि अपना ये सोचो अपने फेलोज के बारे में जो तुम्हारे साथ रहते हैं, कल को क्या बोलेंगे कि तुम अपने आप को प्रिटेंड करते हो दैट यू आर अ फ्रेंच मैन, तुम ये बताते हो कि तुम एक फ्रेंच मैन हो और ना तो तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती है ना तुम्हें लिखनी आती है, तो तुम कैसे फ्रेंच मैन हो जब तुम्हें अपनी ओन लैंग्वेज भी नहीं आती है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच ourselves with. अब कहता है तुम्हारी भी सारी गलती नहीं है इसमें. You are not the worst, तुम ही बहुत बुरे नहीं हो, इसमें सबकी गलती है. We have all a great deal to reproach ourselves with. Reproach means to blame. कि सिर्फ तुम्हें ही ब्लेम करना ठीक नहीं है, हमारी भी गलती है, हम भी इसके लिए पूरे ब्लेमफुल हैं, हमें भी ब्लेम करना चाहिए. अब now it shows that the teacher is very truthful and he blames himself that he is also behind this, that the students could not learn. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. Anxious, they were worried. Why they were worried? That your parents were not anxious. They were not at all worried about your education, your learning. They were not at all worried to send you school, although they preferred to put you to work on a farm or at the mills, or instead of going to school, instead of sending you to school, वो कहाँ भेजते थे तुम्हें? वो तुम्हें कभी फार्म पे भेज देते थे, कभी मिल्स में भेज देते थे, so that you can earn little more money. And I have been to blame also. अब वो पहले उनके पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा है, उसके बाद कहता है कि उसके बाद मैं भी ब्लेम करने के लिए हूँ, मेरे ऊपर भी पूरा ब्लेम आता है. क्यों? Because what he says that, have I not often sent you to water my flowers? क्या मैंने तुम्हें तब कभी अपने प्लांट्स में पानी डालने के लिए नहीं भेजा? Instead of learning your lessons, कि तुम्हें लेसन लर्न करने की बजाय मैंने तुम्हें अपने गार्डन में भेज दिया कि जाओ जाके मेरे गार्डन में प्लांट्स में पानी डाल के आओ. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? क्या ऐसा नहीं हुआ कि मेरा फिशिंग पे जाने का मन हो, मेरा अपना ट्रिप करने का मन हो और मैंने तुम्हें हॉलीडे दे दिया? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. अब इन सब के बाद एक वो बताने लगते हैं, फिर उसके बाद वो आ जाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर. And saying that it was the most beautiful language in the world. अब क्या कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में? This is very important that he says that French language is the most beautiful language in the world. The clearest, the most logical means sensible. So he says that French language is very clearest, logical and the most beautiful language in the world, that we must guard it among us and never forget it. कि हमें हमेशा अपने बीच इसको बचा के रखना है और कभी भी इसको भूलना नहीं है. Because when a people are enslaved means prisoner भी कह सकते हैं, हम गुलाम कह सकते हैं. As long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अगर वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर उनका पूरा होल्ड है, अगर वो सारे कलेक्टिवली बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज को जानते हैं, समझते हैं, लिख सकते हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज उनके लिए एक की टू द प्रिजन का काम कर सकती है. मतलब वो अपनी गुलामी से बाहर निकल सकते हैं. Then he opened a grammar and read us our lesson. वो क्या करते हैं फिर? अपनी ग्रामर बुक खोलते हैं और फिर उनके लिए एक लेसन पढ़ते हैं. So part 1 is over and we will do rest of the lesson in part 2 of the video. If you find this video informative and helpful, then please do like, share and subscribe my channel for further videos. You may ask any queries, questions, doubts and comments in the comment box given below. Hoping to post more videos soon. Thanks for watching it and stay safe and healthy. Thank you.